Hello everyone, welcome to CSR's online classes. So in this video, we'll be starting a series on international relations. So international relations is mostly important for prelims and also for mains, GS2. GS2 mains is quite different because here it's mostly dynamic and we need to link a lot of things in our answer writing. But in prelims, it's more of factual. It's more of factual. How much facts you know about a particular organization, and also a bit of linking part is required, but it is more of factual. So in this series, I will be uploading 2 to 3 IR organizations on in each video. So in today's class, I'll be covering International Court of Justice, International Criminal Court, and Permanent Court of Arbitration. I'm covering these three in a single video. There is a reason for it because these are the three organizations which sounds very similar, So that's why I have decided to cover it in a single video. So let's start now. Okay, first of all, International Court of Justice. Now, International Court of Justice was set up in 1945. It was 1945, and it is one of the six principal organizations of United Nations. We know United Nations has six principal organizations, that is UNSC, UNGA, ICJ, Trusteeship Council, UN Secretariat, and even ECOSOC. These are the six principal organs. So we'll be covering in particular ICJ. I'll be taking one more class on United Nations as a whole. Okay, ICJ is called as World Court. It is called as World Court. Basically, the work is to attribute international disputes, any kind of international disputes between two countries. So if you are having any kind of problem, any kind of dispute, and you are in the United Nations, you are a participant of United Nations, or you are a member of United Nations, then you can go to this particular court. Here the court decision is binding and it is without appeal. So it means there is no appeal mechanism. Appeal mechanism is not there in ICJ, remember. And the decision is binding. Anything the court says or the verdict comes, so it is binding. So here 15 judges will be there for 9-year term. For the 9-year term, there will be 15 judges. No two judges may be nationals of the same country or the same state. Okay. So here 15 judges, the election of 15 judges, they're elected from UNGA and also from UNSC. You have to remember they're elected both from United Nations General Assembly and the United Nations Security Council. Here absolute majority is needed. Some terms you have to remember. Absolute majority is needed. Now the election is held independently. Like UNGA में होगा, UNSC में होगा, independently होगा. एक साथ मिलकर नहीं होती है, but simultaneously होती है. इंडिपेंडेंट होती है लेकिन कहीं ना कहीं साइमल्टेनियसली होती है, एक साथ होती है, एक ही टाइम पे होती है, अलग अलग इंडिपेंडेंटली होती है. वन मोर थिंग ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर, यहाँ पे इलेक्शन जो होती है न्यूयॉर्क में होती है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, लेकिन आईसीजे का जो हेडक्वार्टर है इट इज इन हाग. आईसीजे का हेडक्वार्टर हाग में है, रिमेंबर, नेदरलैंड्स. बट इलेक्शन कहाँ पे होती है? न्यूयॉर्क में होती है. द जजेस आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल हैं जजेस. ओके, now these are the basic things you can remember from here. One more thing you need to remember, there is a mechanism called conference mechanism. Now this is a mechanism which you have to remember. यहाँ पे क्या होता है, अगर इलेक्शन में स्टेलमेट हो जाती है, अगर उनका एंड यूएनएससी में जो मेजोरिटी होगा सपोज स्टेलमेट हो जाती है, फिर क्या होगा? फिर कॉन्फ्रेंस मैकेनिज्म यूज होती है. इन केस ऑफ स्टेलमेट इन इलेक्शन क्या होता है, अ पैनल ऑफ 3 उनगा मेंबर्स एंड 3 यूएनएससी मेंबर्स आर सिलेक्टेड. उनका में से 3, यूएनएससी में से 3 सिलेक्ट होंगे, दे वुड सिलेक्ट द जजेस. फिर वो सिलेक्ट करेंगे जजेस को. ये अलग बात है कि ये अभी तक मैकेनिज्म यूज नहीं हुई है, इट हैज नेवर बीन यूज्ड. सो अगर पूछा जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर मैकेनिज्म है कॉन्फ्रेंस मैकेनिज्म कहाँ पे अभी तक तो यूज नहीं हुआ है, लेकिन एक मैकेनिज्म है. एक मैकेनिज्म किस में है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में है? अगर 4 ऑर्गेनाइजेशन का नाम देगा, सो बेसिकली द आंसर इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ओके ओके, सो इनका जो जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीजे 2 प्रकार के हैं. वन इज सेटलिंग लीगल डिस्प्यूट्स और एक है एडवाइजरी.
मतलब एडवाइस करेगा। लीगल डिस्प्यूट जाहिर सी बात है, जो मैंने बोला, अगर यूनाइटेड मेंबर के कंट्रीज के बीच में कुछ प्रॉब्लम होती है तो यू कैन गो टू आईसीजे, द कंट्रीज कैन गो टू आईसीजे। और एक एडवाइजरी, एडवाइजरी मतलब अगर कोई भी लीगल मैटर पे एडवाइस चाहिए, कोई भी लीगल मैटर पे एडवाइस चाहिए, यू कैन रेफर टू आईसीजे, लेकिन बाय ड्यूली ऑथराइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गन, जैसे कि बहुत सारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गन, एफएओ है, यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को है, फिर डब्ल्यू है, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ये सब स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, आईएमओ है, तो ऑथराइज करके आप एडवाइस मांग सकते हो एनी काइंड ऑफ लीगल मैटर्स पे। ओके, यहाँ पे एक चीज है, ओनली यूनाइटेड नेशन मेंबर्स आर एलिजिबल टू अपीयर बिफोर द आईसीजे इन कंटेंशियस केसेस। अगर कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल केसेस में सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन मेंबर ही अपीयर हो सकते हैं यहाँ पे, मतलब जा सकते हैं यहाँ पे। आईसीजे कैन नॉट डील विथ डिस्प्यूट्स ऑफ इट्स ओन मोशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद करना पड़ेगा। खुद के मोशन में अगर खुद के कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो जाती है तो उसी डिस्प्यूट पे आप केस लेके वहां पे नहीं जा सकते। आईसीजे कैन नॉट डील विद डिस्प्यूट ऑफ इट्स ओन मोशन, ये सिर्फ दो कंट्री के बीच में अगर प्रॉब्लम होता है तभी जाके आईसीजे डील करता है। अपने मोशन के, अपने मोशन मतलब अपने, आईसीजे भी एक कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे चलती है, एक चार्टर के आधार पे चलती है, कुछ गाइडलाइंस के आधार पे चलती है। अगर उसी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आईसीजे कैन नॉट डील विद दैट। then it is not permitted under its statute to investigate or rule on acts of sovereign states as it chooses। उसको ये भी परमिशन नहीं है, कोई भी अगर सोवरेन स्टेट लाइक इंडिया कोई भी रूल बनाती है उसमें आईसीजे इंटरफियर नहीं कर सकती। इट इज नॉट परमिटेड अंडर इट्स स्टैट्यूट टू इन्वेस्टिगेट एंड रूल ऑन एक्ट्स ऑफ सोवरेन स्टेट्स एज इट चूजेस, वो भी परमिशन नहीं है। दो कंट्री के बीच में अगर प्रॉब्लम हो तभी जाके आती है। एक कंट्री में सपोज इंडिया ने कुछ लॉ बनाया है, आईसीजी को पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, आईसीजी इंटरफेयर नहीं कर सकता, बिकॉज वी आर सोवरेन कंट्रीज, वी हैव सोवरेन पावर टू मेक आवर ओन लॉज। एक्सटर्नल जाके हमारे डोमेस्टिक में क्या लॉ होती है क्या नहीं होती है वो इंटरफेयर नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया इज ए सोवरेन नेशन। ओके, और एक चीज है, द स्टेट्स कंसर्न मस्ट एक्सेप्ट द जुरिस्डिक्शन, जैसे कि मैंने बोला बाइंडिंग है, दो कंट्री के बीच में केस चल रहा है, अगर आईसीजी ने कुछ बोल दिया, कुछ वर्डिक्ट दे दिया तो इट इज has to be accepted. The state's concerned must accept the jurisdiction and must provide consent to the courts considering the dispute, मतलब मानना पड़ेगा, it is binding। आप ये नहीं बोल सकते कि ये गलत है, ये सही नहीं, ऐसा आप नहीं बोल सकते, आपको मानना पड़ेगा, it is binding, you have to consent देना पड़ेगा। So ये जो है ये jurisdiction है आईसीजी का, कुछ पॉइंट्स है प्रीलिम्स के लिए। मेंस में डायरेक्ट तो आएगा नहीं, इट इज मोस्टली एप्लीकेशन ओरिएंटेड, लेकिन कभी भी यूज हो सकता है, कभी भी कहीं पे भी यूज हो सकता है। दीज आर द पॉइंट्स। ओके, फिर आईसीजे का जैसे कि हमने बोला बाइंडिंग है विदाउट अपील, अपील नहीं है, अपील मैकेनिज्म नहीं है, बाइंडिंग है, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, बाइंडिंग है। ओके, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई अपील मैकेनिज्म नहीं, जैसे हाई कोर्ट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट है, वैसे आईसीजे के ऊपर कुछ नहीं है। बट एक पॉइंट है यहाँ पे, बट यहाँ पे either if either of the parties challenge their scope or meaning, it has the option to request an interpretation in the event of the discovery of a fact unknown to the court. Either party may apply for a revision of the judgment। if एक सिचुएशन ऐसा होता है कि आईसीजे ने कुछ वर्डिक्ट दे दिया, लेकिन वर्डिक्ट हमेशा एक के फॉर में जाती है और एक के अगेंस्ट में जाती है। ओके, जिसके अगेंस्ट में गई, अगर उसको लगा, उसी कंट्री को लगा कि शायद कोई एक फैक्ट मिस हो गया है आईसीजे से, ठीक है, तो ये कंट्री क्या कर सकती है, एक रिक्वेस्ट डाल सकती है। द कंट्री कैन रिक्वेस्ट फॉर एन इंटरप्रिटेशन, बट इंटरप्रिटेशन इज नथिंग कॉल्ड अपील। अपील मतलब एक इंस्टीट्यूशन से तुम ऊपर के इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो, दैट इज अपील। यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे आईसीजे ने वर्डिक्ट दिया, उसी आईसीजे को तुम एक काइंड ऑफ पिटिशन भेजते हो कि और एक बार इंटरप्रेट कीजिए, बिकॉज मे बी कोई फैक्ट आप मिस कर लिए हो शायद, तो एक रिवीजन कर लीजिए। लेकिन द पॉइंट इज यू हैव टू हैव डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट, आपको प्रूव करना पड़ेगा आईसीजे को, और ये आईसीजे के ऊपर रहता है टू एक्सेप्ट दिस। अगर आईसीजे ने मोशन इंटरप्रिटेशन का मोशन एक्सेप्ट किया तभी जाके और एक बार जजमेंट हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच प्रूफ्स यू हैव, आपको प्रूव करना पड़ेगा, वहां पे कि हाँ, वहां पे एक फैक्ट अननोन टू द कोर्ट हो गया था, इसलिए आप और एक बार कीजिए। ओके, तो ये कुछ चीजें आपको याद करना पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन हो सकती है लेकिन बाइंडिंग है, वर्डिक्ट बाइंडिंग, अपील नहीं है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपील एंड इंटरप्रिटेशन। और एक बार इंटरप्रिटेशन रिक्वेस्ट हो सकते हैं, इट्स पॉसिबल। Okay, states may not be parties to the dispute without their consent,
though they may accept the compulsory jurisdiction of the court in specified countries of disputes. सपोज मान लो कि कोई एक स्टेट पार्टी नहीं है, आईसीजे का पार्टी नहीं है, लेकिन अगर उसको एक पर्टिकुलर केस में एक वर्डिक्ट, दो कंट्री के बीच में एक वर्डिक्ट आ गया, ठीक है, नाउ कंट्री ए कंट्री बी, सपोज कंट्री सी भी इसी वर्डिक्ट, सपोज कोई सी को लेके है और उसी सी के आसपास एक कंट्री सी है विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ आईसीजे, तो इसके ऊपर है, ये एक्सेप्ट कर सकती है, एक्सेप्ट नहीं भी कर सकती, मे एक्सेप्ट, वहीं पे वही लिखा है, दो दे में एक्सेप्ट द कंपल्सरी जुडिशियल को, दे में, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है या फिर मैंडेटरी नहीं है, दे मे एक्सेप्ट, दे मे नॉट एक्सेप्ट ऑल्सो। ओके, सो आईसीजे का ये सब पॉइंट्स से आपको प्रीलिम्स में काफी हेल्प हो जाएगा, बिकॉज प्रीलिम्स में दिस स्टेटमेंट काफी वोकेबुलरी के साथ वो थोड़ा मिक्स करके डालते हैं। ओके, सो आईसीजे में जो इनका हेडक्वार्टर है वो हाग में है। सो अगर हाग में है तो के बारे में जानना भी जरूरी है, उसका जोग्राफिकल जानना जरूरी है, जो कहाँ पे है, उसका मैपिंग कहाँ है। ये सिटी ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नेदरलैंड, इट इज द कैपिटल ऑफ प्रोविंस ऑफ साउथ हॉलैंड, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट सिटी आफ्टर एम्स्टरडैम एंड रॉटरडैम। हाग में जो कैबिनेट का सीट हाग पे है, सुप्रीम कोर्ट भी हाग पे है, काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ नेदरलैंड भी हाग पे है, इतने बड़े बड़े चीजें सब हाग में है, लेकिन it is not the constitutional capital of Netherlands. Constitutional capital of Netherlands तो एम्स्टरडैम में, हाग नहीं है, लेकिन हाग भी काफी बड़ा है, बिकॉज यहाँ पे कैबिनेट का सीट भी यहीं पे है, सुप्रीम कोर्ट भी यहीं पे है, काउंसिल ऑफ स्टेट भी यहीं पे, तो इसका मतलब ये हो गया हाग सिटी इज वेरी स्ट्रेटेजिक फॉर कंट्री लाइक नेदरलैंड, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे है। ओके, बट इट इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल। ओके, लेट्स मूव। Okay, now the next part. The second part is International Criminal Court. Now देखो, International Criminal Court सेम साउंडिंग लग रहा है, लेकिन सेम नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये एक परमानेंट जुडिशियल बॉडी है, ये एक स्टैट्यूट या फिर ट्रिटी या फिर एग्रीमेंट कुछ भी बोल सकते हो, इसका नाम है रोम स्टैट्यूट ऑफ 1998 से बना है। ये जो रोम स्टैट्यूट नेगोशिएट हुआ था यूएन, विद इन द यूएन, याद रखना, नेगोशिएट हुआ था यूएन विद इन द, नॉट अंडर यूएन, यूएन के अंडर नहीं है, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, रिमेंबर इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, नेगोशिएट हुआ था यूएन, देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन नेगोशिएटेड विद इन द यूएन एंड अंडर द यूएन। अंडर द यूएन आएगा तो इट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, नेगोशिएटेड विद इन द यूएन आएगा तो इट विल बी अ राइट स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या होता है, दे विल प्रोसिक्यूट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन एग्जैक्ट डिफरेंस बता दूंगा, याद रखना। ये लोग जो आईसीसी कोर्ट है ये प्रोसिक्यूट करते हैं किसको, इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि आईसीसी प्रोसिक्यूट्स कंट्रीज accused of genocide, war crimes and crimes against humanity, it will be a wrong statement. कंट्री को प्रोसिक्यूट नहीं करता, ये इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट करता है। लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो किसको प्रोसिक्यूट करता है? कभी सुने हो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट करने में? नहीं सुने होंगे, क्योंकि वो प्रोसिक्यूट करता है कंट्रीज को। आईसीजे जो कुलभूषण यादव के केस है वो प्रोसिक्यूट इधर इंडिया को करेगा या फिर पाकिस्तान को करेगा, याद रखना आईसीजे। लेकिन आईसीसी जो है ये इंडिविजुअल को अक्यूज करता है, किसमें, कोई अगर जीनोसाइड में इन्वॉल्व है, वॉर क्राइम्स या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इसका भी हेडक्वार्टर वहीं पे है, आग में है, रिमेंबर। सो आईसीसी इज द कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट to prosecute the most heinous offenses in cases where national courts fail to act. इसका मतलब ये है कि जब नेशनल कोर्ट्स फेल हो जाते हैं एक्ट करने के लिए टू दीज काइंड ऑफ हीनियस क्राइम्स रिलेटेड टू ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम, जिनोसाइड, तब आईसीसी आ सकती है, आईसीसी इंटरफेयर कर सकती है। ओके, आईसीसी may exercise its jurisdiction in situations where the alleged perpetrator is a national of a member state or when the crime is committed in the territory of a member state. आईसीसी एक्सरसाइज तभी कर सकती है जब कोई भी ना, वो ऑब्वियसली ये कुछ कोई इंडिविजुअल के ऊपर करेगी और वो इंडिविजुअल उसी कंट्री का होना चाहिए जो आईसीसी के मेंबर हो। सब इंडिया आईसीसी का मेंबर नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे स्लाइड्स में है, इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ आईसीसी। तो इंडिया के अंदर में कोई भी अगर
जिनोसाइड, वॉर क्राइम्स या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में कोई भी इंडिविजुअल अगर इन्वॉल्व होता है तो आईसीसी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ आईसीसी। इंडिया ने अभी तक रेटिफाई साइन नहीं किया है इसको, रोम स्टैट्यूट को। सो आईसीसी may exercise its jurisdiction in situations where the alleged perpetrator is a national of the member state. member state का national होना चाहिए, और when the crime was committed इन ए टेरिटरी ऑफ नेशनल स्टेट, मतलब मेंबर स्टेट। अगर उसी मेंबर कंट्री के स्टेट में, कंट्री में अगर कोई एक प्रॉब्लम हो रही है या फिर कमिट किया है जो प्रॉब्लम, क्राइम किया है, तभी जाके आईसीसी इंटरफेयर करके वर्डिक्ट दे सकती है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आईसीसी एंड आईसीजे। तो आईसीजे कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन का कंट्री को प्रोसिक्यूट करती है, एंड आईसीसी किसको करती है, इंडिविजुअल को करती है। रिमेंबर, और इसका काफी स्पेसिफिक है, हर जगह पे नहीं आती है, ये सिर्फ जीनोसाइड, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में करती है। अगर कोई साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम है तो आईसीसी काम नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल वहां पे कोई एक वॉर क्राइम हो रहा है या फिर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहा है या फिर जीनोसाइड हो रहा है, नहीं तो वो नहीं कर सकती, उसमें आईसीजे ही आएगा, वो आईसीजे का जुरिस्डिक्शन में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ओके, कुछ और पॉइंट्स। अ स्टेट or a member not party to the statute may decide to accept the jurisdiction of ICC. सपोज मान लो कोई एक सपोज एक कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया तो मेंबर नहीं है, लेकिन अगर कोई भी और कंट्री में के लिए आईसीसी ने कुछ जुरिस्डिक्शन, कुछ वर्डिक्ट दे दिया, तो इंडिया को अगर लगेगा हाँ यह वर्डिक्ट सही है, तो इंडिया एक्सेप्ट कर लेगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है। इंडिया में ऑब्वियसली में मेंबर तो नहीं है, इट मे एक्सेप्ट, कोई इशू नहीं है। Moreover, the UNSC can also refer a situation to the ICC that are outside the jurisdiction of ICC. अगर आईसीसी के jurisdiction के बाहर कोई केस है, obviously jurisdiction के बाहर है, obviously आईसीसी नहीं कर सकती, लेकिन अगर यूएनएससी ने रेफर किया आईसीसी को कि इस केस के बारे में थोड़ा देखिए, तो आईसीसी कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएनएससी करेगा नहीं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के पास आईसीजे है, लेकिन एक वर्स्ट केस की बात हो रही है। अगर सपोज कोई एक सिचुएशन आ गया कि आईसीजे नहीं हो सकते, अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा है, ऐसा लिखा गया कि यूएनएससी कैन आल्सो रेफर अ सिचुएशन टू द आईसीसी दैट आर आल्सो आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीसी, तो रेफर कर सकती है। आपको बस याद करना है कि हाँ कर सकती है। क्वेश्चन उल्टा आएगा कि यूएनएससी कर ही नहीं सकती बिकॉज आईसीसी यूएन के अंडर में नहीं है, ऐसे करके दे विल ट्राई टू ट्रैप। वो सेंटेंस फॉर्मेशन में गलत स्टेटमेंट डालेंगे, लेकिन वो लगेगा सही। फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीसी तो यूनाइटेड नेशन का, फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीसी इज नॉट अंडर यूनाइटेड नेशंस, ये हमको पता है। इसी स्टेटमेंट और इसी स्टेटमेंट को मिक्स करके एक स्टेटमेंट डालेंगे, वो लगेगा सही है लेकिन है गलत। ओके, यहाँ पे नो एलिजिबिलिटी क्लॉज है, एज हु कैन सेंड कंप्लेंट्स टू है। आईसीसी को कोई भी कंप्लेंट सेंड कर सकता है, कोई एलिजिबिलिटी क्लॉज नहीं है। इट इज ओपन टू इंडिविजुअल्स, इट इज ओपन टू ग्रुप, इट इज ओपन टू कंट्रीज, कोई भी कंप्लेन डाल सकता है। बट रेफरल्स कैन बी मेड, अगर कोई रेफर करना चाहो, जैसे कि यूएनएससी ने यहाँ पे रेफर कर रहा है आईसीसी को कि इस केस के बारे में देखिए, बट रेफरल्स कैन बी मेड ईदर बाय ए स्टेट पार्टी टू द रोम स्टैट्यूट और बाय यूएनएससी। अगर कोई केस रेफर करना चाह रहे हो, रेफरल देना चाहते हो, तो ईदर आपको मेंबर स्टेट होना चाहिए, यू हैव टू बी अ मेंबर, और यूएनएससी दे सकती है। यूएनएससी दे सकते हैं, हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, तो मेंबर स्टेट तो हम ऑब्वियसली दे ही सकती है, रेफर कर ही सकती है। एक एग्जांपल बताऊंगा यहाँ पे जो कि मेंस के लिए जरूरी है, आप ऐड कर सकते हो इस एग्जांपल को। देखो एक चीज हुआ था 2003 में, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने अटैक किया था अफगानिस्तान के ऊपर। यूनाइटेड स्टेट्स ने अटैक किया अफगानिस्तान में, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हुए थे अफगानिस्तान में हुए थे, राइट। तो अफगानिस्तान में अगर हुए थे तो जाहिर सी बात है, अफगानिस्तान इज आईसीसी मेंबर और उसी टेरिटरी के अंदर हुआ है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि आईसीसी कैन जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, इट कैन एडजुडिकेट। यूएस लेकिन मेंबर नहीं है, जिसने अटैक किया है वो आईसीसी का मेंबर नहीं है। तो 2003 के अटैक में आईसीसी इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, बट अफगानिस्तान ने कंप्लेन नहीं दिया था, लेकिन आईसीसी ने स्टिल इन्वेस्टिगेट किया था। इट मीन्स यहाँ से ये पता चल जाता है कि सो मोटो भी कर सकती है, सो मोटो इन्वेस्टिगेशन भी आईसीसी कर सकती है। सो आईसीसी कैन ओपन इन्वेस्टिगेशन ऑन हर ओन अथॉरिटी। एक चीज मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे बताना चाहूंगा जो यहाँ पे लिखा नहीं है, यूएस और अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम हुआ तो आईसीसी ने एक वर्डिक्ट दिया,
आईसीसी ने एक वर्डिक्ट दिया था, और ये वर्डिक्ट जो था इट वेंट अगेंस्ट द यूएस, और ये अफगानिस्तान के सपोर्ट में एक वर्डिक्ट दिया था। ओके, क्योंकि यूएस ने जो अटैक किया था बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हुए थे, लेकिन यूएस को कुछ फर्क नहीं पड़ा, नथिंग हैपेंड टू यूएस। व्हाई? बिकॉज यूएस इज नॉट एन आईसीसी मेंबर। यूएस क्लियरली सेड कि वी डू नॉट एडहर, वी डू नॉट एडहर or we will not adhere to ICC verdict because we are not members of ICC। हम ICC के मेंबर नहीं हैं, तो हम एडहर क्यों करेंगे? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे दो चीज है कि एडहर नहीं किया कि उनके पास ऑप्शन है कि वो मेंबर नहीं है। एडहर कर भी सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। और सो मोटो भी आईसीसी एडजुडिकेट कर सकती है, केसेस ले सकती है, जैसे कि इस केस में 2003 अटैक केस में लिया था। ओके, नेक्स्ट, तो इंडिया और आईसीसी का क्या रिलेशन है? देखो, इंडिया ने नीदर साइन किया, इंडिया ने अभी तक भी साइन किया नहीं, रेक्टिफाई भी नहीं किया। ओके, अब साइन जब एक साइनिंग एंड रेक्टिफिकेशन का मतलब डिफरेंस क्या है? ठीक है, साइन का मतलब ये है, एक मिनट, साइनिंग का मतलब ये है कि जब कोई ट्रीटी खोलती है, जब कोई ट्रीटी जस्ट ओपन होती है, देन यू जस्ट साइन इट एट दैट प्लेस, यू साइन इट एंड कम। रेक्टिफाई मतलब आप यू कम टू योर ओन कंट्री एंड इट गेट पास्ड फ्रॉम द कैबिनेट। हमारे कंट्री में जब कैबिनेट उसको पास करती है, इसका मतलब वो रेक्टिफाई हम करते हैं। अब रेक्टिफाई के बाद हमको लॉ भी लाना पड़ेगा, वी हैव टू ब्रिंग ए लॉ, उसी के आधार पे एक लॉ लाना पड़ता है। हमने, इंडिया हैज नीदर एट साइंड देयरफॉर नॉट रेटिफाइड। क्यों साइन नहीं किया? क्योंकि कश्मीर इशू, इंडिया हमेशा, जो कश्मीर इशू है, इंडिया फियर करते हैं कि कश्मीर इशू में बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायोलेशन होते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे साइड कश्मीर में भी होते हैं, जम्मू में भी होते हैं, इंडिया, दीज आर पार्ट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे अगर कुछ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हुआ तो इट इज एविडेंट कि आईसीसी कैन इंटरफियर, और आईसीसी कैन इंटरफियर। अब जब आईसीसी इंटरफेयर करेगी तो अफेक्ट इट मे अफेक्ट इंडियाज सोवरेंटी, इंडिया का सोवरेंटी को अफेक्ट कर सकती है, राइट? तो इसलिए इंडिया नहीं करे, इंडिया इज नॉट रेक्टिफाइंग, neither signing nor ratifying this particular Rome Statute। वही चीज लिखा है, it considers the jurisdiction of ICC as a violation of the country's sovereignty। इंस्टेड इंडिया ने क्या किया है, इसके अलावा इंडिया ने क्या किया है, बिना साइन करे इंडिया ने क्या किया, एक ऑप्ट इन प्रोविजन ऑफ आईसीसी मतलब ले रखा है, वेयर a country could accept the jurisdiction of ICC by declaration specified to an issue and time period। इंडिया ने क्या एक ऑप्ट इन ऑप्शन जो है बोल दिया कि हम इसी ऑप्शन, इसी प्रोविजन के साथ रहेंगे, जब भी हमको अच्छा लगेगा, इफ वी लाइक समथिंग ऑफ योर जुरिस्डिक्शन देन वी विल जस्ट टेल इट बाय डिक्लेरेशन, ओके we are liking this jurisdiction, and it will be specified to any issue and specified to any time period। So this is the relation between India and ICC। you can use it in मेंस में जब कुछ क्वेश्चन आएगा सिक्योरिटी रिलेटेड या फिर कोई भी आईआर रिलेटेड क्वेश्चन, इंडिया पाकिस्तान इशू, बहुत कुछ आता है, अम्ब्रेला क्वेश्चन आते हैं आजकल, लाइक वेरी जनरल क्वेश्चन आ रहा है। अम्ब्रेला का मतलब है जनरल क्वेश्चन, जहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं, तो ये भी एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। ओके, क्विकली देन विल मूव टू द लास्ट पार्ट, दैट इज द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, पीसीए। ये सबसे ओल्ड है, याद रखना, पीसीए सबसे ओल्ड है, क्योंकि परमानेंट कोर्ट ऑफ 1819 बहुत पुराना है। इट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, ये भी इंडिपेंडेंट है, कोई यूएन के अंडर में नहीं है। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना, इट इज नॉट ए कोर्ट, ये कोई कोर्ट नहीं है। पिछला जो दो था, दे वर कोर्ट्स, आईसीजे एंड आईसीसी वर कोर्ट्स। पीसीए इज नॉट ए कोर्ट, इट डज नॉट हैव ए परमानेंट, इसका परमानेंट जजेस भी नहीं है। इट इज ए परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, इट इज ए परमानेंट ब्यूरोक्रेसी दैट असिस्ट ट्राइब्यूनल्स। देखो याद करो यहाँ पे, दैट ट्राइब्यूनल्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जब भी कोई दो कंट्री के बीच में प्रॉब्लम होती है, आप अगर पीसीए के पास जाओगे, वो क्या करेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। कैसे करेगा? ट्राइब्यूनल सेट करके करेगा, कहीं ना कहीं कोर्ट ही है, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि अलग अलग ट्राइब्यूनल सेट करता है, अलग अलग इश्यूज के लिए, अलग अलग कंट्रीज के इश्यूज के लिए। It has a permanent framework for arbitral tribunals constituted to resolve specific dispute। आज अगर इंडिया और चाइना के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इंडिया
पीसीए के पास गया तो वहां पे क्या होगा, दे विल, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, पीसीए इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, एक पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल सेट करेगा या फिर एस्टेब्लिश करेगा कि ये प्रॉब्लम को आप संभालें। 10 दिन बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, अगेन वो पीसीए के पास अगर जाते हैं, सपोज पीसीए के पास जाते हैं, तो पीछे क्या करेगा, एक ट्राइब्यूनल सेट करेगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो अलग अलग ट्राइब्यूनल्स सेट होते हैं टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स। तो ऑब्वियसली ट्राइब्यूनल में रहेंगे तो यहाँ पे आर्बिट्रेट, जैसे कि इनको आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बोलते हैं, तो वहाँ पे आर्बिट्रेटर्स भी रहेंगे। आर्बिट्रेटर में दो प्रॉब्लम है जो सॉल्व कराते हैं उसको आर्बिट्रेटर्स बोलते हैं। तो इनका भी बाइंडिंग डिसीजन रहता है, याद रखना, बाइंडिंग डिसीजन रहता है। It resolves dispute involving various states, private entities, international organization, any dispute। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। जैसे कि आईसीजे में क्या था, कंट्री एंड कंट्री जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। आईसीसी में इंडिविजुअल्स जा सकते हैं, कंप्लेन दे सकता है, स्टेट्स कंप्लेन दे सकता है, कोई भी दे सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी स्टेट्स दे सकता है, प्राइवेट एंटिटीज प्रॉब्लम, दो प्राइवेट एंटिटी में प्रॉब्लम होता है तभी भी जा सकते हो। इंटरनेशनल, दो इंटरनेशनल ऑर्गन, सपोज आसियान एंड एससीओ के बीच में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कुछ हुआ तो देयर इज एन ऑप्शन। देखो मैंडेटरी नहीं है, वो जा सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। ये काफी पुराना हो गया है वैसे, ओके, लेकिन न्यूज में रहता है हमेशा। सो यू हैव टू, एंड इट इज अ स्टैटिक पार्ट ऑफ आईआर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे याद जो करने का, इट इज, ये जो एस्टेब्लिश हुआ था, एक ट्रिटी से एस्टेब्लिश हुआ था, एक ट्रिटी, और उस ट्रिटी का नाम है, आपको याद करना पड़ेगा, सी कैपिटल, नाम है कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स 1899। अगर ये कन्वेंशन का नाम आएगा सो इट इज पीसीए, रिमेंबर। तो इसको अदरवाइज भी बोला जाता है पीस कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी 1899 में, तो यहीं से ही पीसीए, इसी पीस कॉन्फ्रेंस या फिर इसी सेटलमेंट से पीसीए बनी थी, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। और पीसीए इज ऑथराइज्ड बाय द हाग पीस कॉन्फ्रेंस, इसी को हाग पीस कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है। पीसीए भी हाग में है, इसीलिए ये तीनों के तीनों एक ही वीडियो पे मैंने कवर किया है ताकि याद हो जाए, एक ही वीडियो पे आप याद कर सकते हो एवरीथिंग। ओके, तो हाग पीस कॉन्फ्रेंस अगर पूछा जाएगा तो वहां पे ऑप्शन में आईसीजे भी रहेगा, आईसीसी भी रहेगा, पीसीए भी रहेगा, तो इट बिकम वेरी कंफ्यूजिंग। तो हाग पीस कॉन्फ्रेंस अगर आया, इट इज नथिंग बट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो एक पीसीए, तो एक जो इनका जो पीस कॉन्फ्रेंस था 1899 में हुआ, कुछ कंट्रीज यहाँ पे आके पार्टिसिपेट, इंडिया इसी कॉन्फ्रेंस से ही इसका मेंबर बना था। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है ये जो कन्वेंशन हुआ था, पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, दो बार हुई थी। एक हो गया 1899 में, यहाँ पे 71 मेंबर्स बिकेम पार्टी, यहाँ पे इंडिया बिकेम ए मेंबर, जिसको फर्स्ट पीस कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। और एक बार 1907 में हुआ था और 101 मेंबर्स बिकेम पार्टी, इसको सेकंड हाग पीस कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। कोई भी पार्टी अगर इस कन्वेंशन को साइन करता है ऑटोमेटिकली बिकम पार्टीज टू पीसीए। इस कन्वेंशन को अगर साइन कोई भी पार्टी साइन करता है तो वही कंट्री ऑटोमेटिकली पीसीए का मेंबर बन जाती है, क्योंकि इस कन्वेंशन से ही पीसीए आई है। पीसीए केम फ्रॉम दिस कन्वेंशन ओनली, सो ऑटोमेटिकली विल बिकम ए मेंबर ऑफ पीसीए। ओके, वही है पीसीए इंडिपेंडेंट है, फर्स्ट लाइन हमने लिखा था पीसीए इंडिपेंडेंट है। सो पीसीए एक नॉन यूएन के अंडर नहीं है, तो नॉन यूएन एजेंसी है, बट वो एक ऑफिशियल ऑब्जर्वर है यूनाइटेड नेशन 93 से, 1993 से ऑब्जर्वर है ना। दो चीज मैं बोल दूंगा, याद रखना, क्योंकि अभी मुझे याद आ रहा है, नहीं तो बाद में इन्हीं अदर वीडियो में मैं कराऊंगा। ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब क्या है, हमने बहुत बार सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड लॉट ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वर, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्वर स्टेटस है, यूएन में ऑब्जर्वर स्टेटस है। ऑब्जर्वर स्टेटस मतलब, ऑब्जर्वर स्टेटस मतलब, नोट डाउन कर लो, जैसे IUCN एनवायरमेंट में पढ़े थे, ये भी एक ऑब्जर्वर स्टेटस है, मतलब वो जाके वहां पे दे कैन सिट, दे कैन अटेंड मीटिंग्स, ठीक है, यूएन का। लेकिन कैन दे वोट, सी दो प्रकार के हैं। जो रिजोल्यूशन आती है ना, रिजोल्यूशंस उनका का, रिजोल्यूशन में दे कांट वोट, दे कांट वोट, लेकिन प्रोसीड्यूरल वोट्स वो कर सकते हैं। रिमेंबर द वर्ड प्रोसीड्यूरल। अगर एनी वोटिंग होगा रिलेटेड टू एनी प्रोसीड्यूर, मतलब डे टू डे अगर मीटिंग में कुछ हो रहा है, तो वहां पे ऑब्जर्वर स्टेटस ऑर्गेनाइजेशंस कैन वोट।
लेकिन कोई एक बड़ा सा रिजोल्यूशन जब आ जाएगा वहीं पे तो जाहिर सी बात है वोट नहीं कर सकते, लेकिन प्रोसीड्यूरल अगर वार्ड रहेगा तो वो वोट कर सकते हैं, जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, ठीक है। फिर यूएन का बॉडी नहीं है बट ऑब्जर्वर स्टेटस है। एंड सेक्रेटेरिएट ऑफ पीसीए जो है, सेक्रेटेरिएट ऑफ पीसीए को बोला जाता है इंटरनेशनल ब्यूरो। रिमेंबर द नेम इंटरनेशनल ब्यूरो। ये भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, इंटरनेशनल ब्यूरो किसका सेक्रेटेरिएट, इन चारों में से ऑप्शन आ जाएगा, आईसीजे, पीसीए, आईसीसी सब आ जाएगा। सो सेक्रेटेरिएट पीसीए को बोलते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो, हेडेड बाई उनका एक सेक्रेटरी जनरल रहेगा जिसको हेड, वही हेड करेगा। इनका जो सेशन रहता है पीसीए का वो प्राइवेट में होता है। सेशन मतलब जो कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, जो केस वगैरह चलती है, अगर प्रॉब्लम्स हो जाएगा तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के पास जाएगा, वो सब कॉन्फिडेंशियल है, प्राइवेट चलती है। एज सच कोई एक इनका शूटिंग वगैरह नहीं होता या फिर किसी को पता नहीं चल रहा है, इट इज हेल्ड इन प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। ओके, इनका बजट जो है, बजट ऑफ द पीसीए कम्स फ्रॉम कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर्स एंड इनकम फ्रॉम आर्बिट्रेशन केसेस। मेंबर जो, जैसे इंडिया मेंबर है, बहुत सारे कंट्री मेंबर वो कंट्रीब्यूट करते हैं, या फिर आर्बिट्रल केसेस से जो पैसा मिलता है उनको, क्योंकि फ्री में तो वो केस सॉल्व नहीं करेंगे ना, तो जो पैसा मिलता है वहीं से भी इनका पैसा चलता है, बजट वहीं से आती है। और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अमाउंट्स टू बी पेड बाय द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल मेंबर, जैसे कि हमने बोला कि कंट्रीज लाइक इंडिया दे ऑल्सो कहीं ना कहीं पे करते हैं बजट में, जैसे कि मैंने अभी बोला, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो जो उनका जो मैकेनिज्म है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अमाउंट्स टू बी पेड बाय द इंडिविजुअल मेंबर कंट्रीज इज बेस्ड ऑन द सिस्टम इन यूज बाय द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। एक पर्टिकुलर सिस्टम है, डिटेलिंग हमको पता भी नहीं है, एक सिस्टम है जो कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, एक सिस्टम, यूपीयू, इट इज अ यूनाइटेड नेशन एजेंसी, स्पेशलाइज्ड बॉडी लाइक एफएओ, फूड, डब्ल्यूएचओ, एफएओ, उनकी तरह पोस्टल पॉलिसीज में जो काम करती है, तो उसी सिस्टम के आधार पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन होती है अमाउंट। और कॉस्ट ऑफ द आर्बिट्रेटर इट इज आर्बिट्रेटर, ARBITR, कॉस्ट ऑफ द आर्बिट्रेटर वेरीज फ्रॉम केस टू केस, कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, केस टू केस से हिसाब से आर्बिट्रेटर का कॉस्ट वेरी करता है। यहाँ पे मैंने जस्ट एक मेंशन कर दिया है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, इनका नाम याद रखना, ट्रिटी ऑफ बर्न से आई है, ट्रिटी ऑफ बर्न 1874 से आई है, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, नाम से पता चल जाता है, पोस्टल पॉलिसी, जैसे कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर में काम करती है, WHO वर्ल्ड हेल्थ में काम करते हैं, IMO मेटेरियोलॉजिकल पे काम करती है, वैसा ही पोस्टल यूनियन पोस्टल पॉलिसीज में काम करती है। व्हेन प्रॉब्लम्स अराइज इन अपॉइंटिंग और डेजिग्नेटिंग आर्बिट्रेटर्स फॉर एन आर्बिट्रेशन, द पीसीए सेक्रेटरी जनरल में बी रिक्वेस्टेड टू सर्व एज एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अगर प्रॉब्लम होती है इन डेजिग्नेटिंग, अगर प्रॉब्लम होती है इन डेजिग्नेटिंग आर्बिट्रेटर्स, क्योंकि जब एक केस आता है तो पहले तो एक आर्बिट्रेटर डिजिग्नेट या फिर रेडी करना पड़ेगा। अगर उसमें प्रॉब्लम हो रही है देन पीसीए का जो सेक्रेटरी जनरल, उनको रिक्वेस्ट जाएगा टू सर्व एज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वही अपॉइंट करेगा एक आर्बिट्रेटर को। रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, ये कुछ इंफॉर्मेशन है, जस्ट यू नीड टू रिवाइज करना पड़ेगा, जस्ट आपको रिवीजन से ही होती है, बिकॉज जितना बार आप रिवाइज करोगे उतना ईजी हो जाएगा ये सब चीज़ याद करना, बिकॉज कोर्स काफ़ी बड़ा है। ओके, सो हमारा एक एडवांस सीरीज, टेस्ट सीरीज चलती है, यू कैन गो थ्रू आवर वेबसाइट एंड चेक इट। दिस इज आवर वेबसाइट csrclasses.in, एंड बेसिकली CSR क्लासेस जो मेरा खुद का है, वी फोकस, नॉट वी, बेसिकली इट्स मी, आई फोकस ऑन कंटेंट, स्ट्रैटेजी एंड रिविजन। कंटेंट के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है क्योंकि मैं मेंटर भी हूँ, सो आई क्रिएट स्ट्रैटेजीज फॉर स्टूडेंट्स, और कैसे रिविजन करते हैं 24/7, कैसे, like how to study, not study 24/7, but I mentor 24/7. So yeah, this is the thing, and I'll be uploading more videos on IR. Thank you.